Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to Lahore Lead University, Pakistan, second international conference on integration of social sciences. This conference was launched on April 26th by Lahore Leeds University in collaboration with Ontario Learning Centers Canada, OLC Canada. And today is the second day, and we have been here in this conference since whole night because we are 9 hours behind from Pakistan. So the conference time was 10 a.m. in Pakistan, so it was 1 a.m. After midnight here in Canada. So we are joining here from Mississauga, Canada, since last yesterday. The conference was launched. So today is the second day of this second international conference on integration of social sciences by Lahore Leeds University, Pakistan. Uh, The conference patron is Dr. Nadeem Ahmed Bhatti. He is the Vice Chancellor of the Lahore Leeds University. And Professor Dr. Rafaqat Ali Akbar is the conference chairman, and he is the Dean of Humanities and Social Sciences, Lahore Leeds University. And Dr. Faisal Majid is the conference secretary, who is the Director of ORIC, Lahore Leeds University. So the theme of the conference of this conference, second international conference on integration of social sciences, the theme was navigating social challenges through integrated social sciences. So in this conference, a lot of issues were discussed by the educationists and the scholars participated in this conference since last 2 days. And on various themes, lot of research papers, case studies, and the panel discussions were conducted. And in various sessions since last 2 days, today is the second day, and after the break, the session will to start again. So this is the program schedule. Day 1, April 26th, when the opening ceremony was held in the morning. After that, there was a panel discussion of the vice chancellors of various universities on social sciences topics. And then a number of concurrent sessions were organized in various rooms on different topics, whereby different scholars presented their research studies and a discussion were there. And today is the second day of this second international conference on integration of social sciences by Lahore University in collaboration with OLC Canada. We are sitting here in Canada, and it's now 5:15. Yeah, so it's now morning since last night. We are sitting here, and in Pakistan is now 2:15 p.m. in the afternoon. So after the break, the session will going to resume again, and then we'll proceed. So let's see the schedule of this 2 days programs conference program. Let's see the details of this 2 days. We have here, yeah. So let's discuss in detail the conference schedule, what we had here. So this is the second international conference on integration of social sciences, ICOSS 2025, for the 2 days, April 26 and 27. Day 1, Saturday, April 26. Opening ceremony was held in the conference hall, and after the recitation of the Holy Quran, the Hadith, welcome address was made by the conference chair, Professor Dr. Rafaqat Ali Akbar. Then the address of the chairman of the Board of Governors, Lahore Leeds University, and keynote addresses were made by Dr. Salman Ghani, senior journalist, and Dr. Sajida Shahnawaz Asma. On reproductive, she is a reproductive surgery physician, and then conference patron made his comments.
So in this way, opening session was concluded yesterday in the morning. After that, there was a panel discussion of vice chancellors on the topic social sciences research, the role of universities in Pakistan. And discussion was chaired by Professor Dr. Muhammad Zakaria Zakar, Vice Chancellor, University of Poonch, and the panelists were Professor Dr. Rauf Azam, Vice Chancellor, GC University, Faisalabad, Professor Dr. Sajjad Mubin, Vice Chancellor, University of Paran, Main Imran Masood, former Minister of Education, Vice Chancellor, University of South Africa, Asia, Professor Dr. Khalid Mahmood, Vice Chancellor, University of the Punjab, Lahore, and General retired Asif Munir Shogra, Vice Chancellor, Mohideen University, Azad Jammu Kashmir, and Dr. Nadeem Ahmed Bhatti, who is the Vice Chancellor of the Lahore Lead University. So these were the panelists for the panel discussion held of the Vice Chancellor on the topic Social Sciences Research, the role of universities in Pakistan yesterday. After that, various content panel discussions were held, and the conference sessions were arranged in various rooms. Uh, so in this way, the first day was completed. And then today is the second day, the April 27th. In the morning, the keynote speeches were made, preliminary sessions by Professor Dr. Shahid Farooq, head of the Department of the Advanced Studies, IIR University of the Punjab, and then Dr. Muhammad Usman Siddiqui, Associate Professor, Department of Psychology, University of Bath, UK, and keynote address by guest of honor, Professor Dr. Farhan Naveed Yusuf, Professor, Director, Institute of Social and Cultural Studies, University of Punjab. Then another keynote address was Dr. Satvinder, barrister and professor, and then keynote address by Professor Dr. Arif Noor, who is a professor of business education, York University, Canada. Arif Noor. The topic was intersection of universities and business education, the role of modern university in developing essential basic skills. And after that, a small short Q&A session was arranged in this preliminary session. And then we had another preliminary session on the topic of effective digital media, artificial intelligence on research, effective effects of digital media and artificial intelligence on research. So a number of panelists participated in this panel discussion. Dr. Anjum Ziad, who is the Dean of Social School of Communication Studies, UMT, Mr. M. Akram Barkat, DG Operation Punjab. I think he was not available. And Professor Dr. Nushina, Chairperson, SCSU University of the Punjab. Professor Dr. Altafullah Khan, Dean of the Faculty of Humanities, FC College. Dr. Hilal Fatma, Chairperson, Department of Mass Communication, Lahore Lead University, who is the moderator. And then concrete sessions were arranged. After this will be the break. There is a break, and there will be some conference sessions in various rooms. And following that conference session, the closing ceremony will going to start shortly at 2:40 p.m. In Pakistan time, and we will be joining this closing ceremony. So this is a full 2 days program schedule. So we already have completed around 60%, 70% of the conference. And now only the conference session from 1:40 to 2:40 will be arranged in various rooms on the various topics. And then the closing ceremony will be at 2:40. So just go back to our this conference is being organized by Lahore Lead University, Pakistan, in collaboration of OLC Canada, Ontario Learning Center, Canada. Okay, and since yesterday the HIBA team is actively involved in this conference from remotely from Canada, with the whole night, because 1 a.m. is starting here and 10 a.m. in Pakistan. So this HIBA project was launched in 2021 to bring the scholars together, and from then
number of conferences when webinars have been arranged and training programs were conducted. Under this HIBA platform, thousands of scholars have gathered from various universities, and uh, there is advisory board from members from various countries. Qualified scholars are there who are helping and guiding in this project, HIBA project, since its inception in 2021. This HIBA project has been named in the name of Dr. Shrafat Ali Hashmi, who was the Dean and Director of IBA University of Karachi. So Dr. Hashmi IBA is called HIBA. So in this way, we have been successfully in establishing the HIBA chapters in more than 15 countries around Australia to North America. From Australia to Canada is 16-hour time difference, and we have been supporting our scholars 24/7 environment. Like whole night, we are involved in this conference for the delivery of this conference remotely from Canada. So our next conference, the HIBA conference, will be held in December 27 and 28. So shortly, this will be a multidisciplinary conference, and the conference areas are business, education, science, and technology, with various conference themes have been listed here. And the registration is on hold. Will start on 1st July, the registration. So this is our HIBA project, which is under the Ontario Learning Centers, Canada. So shortly the conference session will start, and will join to the Lahore Leeds University. Various free courses are available on Ontario Learning Center website, and you can start learning a lot of free courses from this website. कैसे जोड़ा जा सकता, तो इस्लाम के लिए, इस्लाम की तालीमात को बयान करने के लिए, इस्लाम की हकीकी तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मुसलमानों को हर किस्म के जदीद ज़राए को इख्तियार करने की जरूरत है। और मैं अपनी बात को अल्लामा इकबाल के शेर पे खत्म करता हूँ, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस उन्वान पे मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, कुरान में लफ्ज़ कौल के मुतनव्वे इस्तेमाल और तफसीरी तवस्सो, तफसीर तबरी का मुताला। बस खुलासा पेश करना है। कुरान मजीद वैसे हमें सब पता है कि अरबों की लुगत पर नाजिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने अरबी लुगत के अंदर बड़े जदीद अल्फाज का इजाफा किया। बावजूद ये कि अरबी खुद बहुत फसी है, लेकिन बहुत सारे इस्तेमाल ऐसे अल्फाज ले आए हैं। बाद अल्फाज थे तो पुराने, लेकिन उनका एक नया माना मुतारफ किया, फिर वही माना बन गया। जैसे सलात है, लफ्ज़ी माना और है, लेकिन आप अरकान मखसूसा ही नमाज के लिए इस्तेमाल होने लगा। सोम है, हज है, मोमिन है, काफिर है, ये तमाम जो अल्फाज थे ये नए माने इख्तियार कर गए और वही उसका असल माना बन गए। इसी तरह कुरान में लफ्ज़ कौल है, इसके भी जो है ना बहुत ज्यादा मुश्तक़ात और कसीर मानों में ये इस्तेमाल हुआ। कौल, इसका इसमें फाइल काइल बमाना कहने वाला, बोलने वाला, कैलूला के लिए भी इस्तेमाल हुआ। इसी तरह अलकौल बमाना कुरान के लिए भी इस्तेमाल हुआ, कुरान को भी कौल कहा गया। अजाब के लिए भी लफ्ज़ कौल इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जो है ना जुबान से अदा होने वाले जुमलों को भी कौल कहा गया और दिल में आने वाली बात को भी कौल कहा गया। इन कौल की किस्में बन गई कलाम लफ्ज़ी, कलाम नफ्सी। इसी तरह जो है ना कुरान करीम में इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, जिब्रील अमीन के लिए यहाँ कौल का लफ्ज़ जिब्रील अमीन के लिए जब बोला गया
तो कहने वालों ने कहा जी कुरान, ये जो कलाम, जो अल्फाज हैं, ये कारी के अल्फाज होते हैं। तो कारी जो है ना, जैसे खुद इंसान हादिस है, तो कुरान भी नाउज़ुबिल्लाह हादिस है। वो मोतसिम बिल्लाह एक नया नजरिया लेके आया। इसी की पादाश में जो है ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को कोड़े खाने पड़े कि वहीं पे रब ताला ने सूरह क़यामा में वइज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ क़ुरआना, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर को पढ़ा रहे होते थे, और रब ताला ने फरमाया कि जब हम पढ़ रहे हो, तो मतलब है कि जिब्रील के पढ़ने को, कारी के पढ़ने को रब ने अपना पढ़ना कहा। तो बहरहाल ये काफी सारी जो है ना ये इस बहुत ज्यादा इसमें यानी 33 बार कौल का इस्तेमाल हुआ है, मुतकाबिलात में भी और मुख्तलिफ मानों में। तो इंशाअल्लाह जिसको चाहिए हुआ ये मवाद मिल जाएगा। वक्त की किल्लत के बायस में इसी पे इत्तेफा करता हूँ। उस सब दिल बहुत है, उस सब सहरा कम है, इसलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना है। तो मैं आखिर माजरत करता हूँ स्टूडेंट से जिनको बकायदा वक्त नहीं दिया गया, क्योंकि टाइम मुख्तसर था। डॉक्टर नवीद साजिद अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ में आज भी प्रेजेंटर हैं, उनका क्लास अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर नदीम भट्टी साहब, वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी, जनाब डॉक्टर एहसान मलिक साहब, जनाब डॉक्टर इकबाल नकियाना साहब, हज़रात गिरामी, इंतहाई अज़ीज़ शुरका, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंतहाई खुशी हुई यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के हमारे PhD के तलबा ने आपके सामने अपने मकाले, उनकी तलखीस पेश की है। और खुशी की बात इस लिहाज से भी है कि ये एक इब्तिदाई और तमहीदी कोशिश है। और मैं अगर यानी यहाँ पर 8 या 9 तलबा ने अपने वो आपके सामने रखी है, फिर इख्तिसार अगर मैं आपके सामने एक बात रखूँ कि ये जो मरहला होता है जिसमें आप अपना पेपर पेश करते हैं और उसका एब्स्ट्रैक्ट आप पहले से भेजते हैं, जाहिर है कि ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक बुनियादी ज़रूरत होती है। और इसमें कोई भी टॉपिक इख्तियार करने, चूज करने से लेकर और यहाँ पेश करने तक और फिर उसको पब्लिश करने तक के जो मराहिल होते हैं, वो सारे वो मराहिल होते हैं कि जो आपके एक थीसिस के, आपके एक मकाले के मराहिल होने चाहिए। कि आप जिस टॉपिक का इंतखाब कर रहे हैं, आप जरूर इस बात को मद्देनजर रखें, लिटरेचर रिव्यू को देखें कि आया इस टॉपिक पर पहले काम हुआ है या पहले काम नहीं हुआ। कोई नई चीज आप पेश करने जा रहे हैं, आपका मुताला इस हवाले से है या नहीं है, आपका एरिया ऑफ स्टडी ये है या नहीं है, आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपके कीवर्ड्स क्या हैं, आप उसकी तलखीस पेश करते हैं। और फिर सबसे बुनियादी बात यह होती है कि यहाँ वक्त की बात नहीं कि आपको कितना वक्त मिला। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में ये भी हो सकता है कि आपको ज्यादा वक्त मुयसर हो और आप अपनी ज्यादा तफसील के साथ बात रख सकें या अपना पेपर पढ़ सकें, या इंतहाई इख्तिसार और जामियत के साथ आप अपनी गुफ्तगू यहाँ पर रख सकें। असल बात तो ये कि आपकी अपनी तैयारी कितनी, क्या आपके रेफरेंसेस कितने हैं, क्या आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, और इसी को आप आगे पब्लिश करने की तरफ बढ़ते हैं तो क्या ये चीज लोगों के लिए मुफीद होगी, क्या आप एक इल्म में इजाफा करने का सबब और जरिया बनेंगे, या फिर इसमें कोई खास खातिर का इजाफा जो है वो नहीं होगा। इस नुक्ते नजर से जब किसी भी टॉपिक को आप हाथ लगाएंगे, कि जब किसी का भी आप इंतखाब करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप बेहतर से बेहतर अपनी कोशिश और अपनी मेहनत को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। ये आगाज है, तमहीद है और इब्तिदा है, और इंशाअल्लाह जो जो आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ेगी इसमें निखार आएगा, आपकी इस्तेदाद और सलाहियत में इजाफा होगा। और फिर सिर्फ यहाँ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं और यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि आप दुनिया भर में कहीं भी जिस टॉपिक पर आपको दावत दी जा सकती है और आप वहां जा सकते हैं और आप वहां अपना पैगाम और अपनी रिसर्च लोगों के सामने रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म दीन के इस बुनियादी तसव्वुर को, हमारा तसव्वुर इल्म और तहकीक बड़ा वाज़ेह है, हमारा तसव्वुर तालीम, तसव्वुर तरबियत और तसव्वुर तज़किया के बगैर नहीं है, हमारा तसव्वुर इल्म तसव्वुर अखलाक के बगैर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम तसव्वुरात को
अपने सामने रखने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने और संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सब अहबाब का उसी तौर पर इसी साल का साहिबान का इंट्रोड्यूस सब अहबाब को बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ करता है तो मैं हवाले करता हूँ। Thank you very much, Dr. Asif Muhammad Imran sir. हमारा पिछला सेशन जो है एक्चुअली कंक्रीट सेशन था, ये हमारा कंक्रीट सेशन था, तो वो कंक्लूड हो गया और हम अपने कॉन्फ्रेंस के इंतजामी सेशन की तरफ आ रहे हैं और दिस इज आवर लास्ट सेशन। आज के जो कंक्रीट सेशन थे वो सारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम जो क्लोजिंग सेरेमनी है इसकी उसकी तरफ हम जा रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉन्फ्रेंस चेयर को प्रोफेसर डॉक्टर फखरुद्दीन को लाइव तशरीफ लेना है। और कॉन्फ्रेंस की जो पैटर्न है वो हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद बच्ची। हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं उन्होंने थ्रू द कॉन्फ्रेंस बहुत टाइम भी हमें दिया और साथ साथ तो बाकायदा इसकी हम चलते हैं। कॉन्फ्रेंस पैटर्न आपके पास हैं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस तशरीफ ला चुके हैं और हमारे जो आज के की नोट स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एहसान मलिक साहब। तो एक्चुअली हमारे पास स्केड्यूल स्पीकर ही मैं कहूँगा सर। तो प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मलिक साहब, he has more than 35-year experience in the research, in the administrative different posts and as well as teaching. तो उनका जो एक डाइवर्सिफाइड किस्म का नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी उनकी जिम्मेदारी उन्होंने परफॉर्म की नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे मेरे लिए सबसे बढ़ के खसूसन मेरे लिए ये एजाज है, ही इज माय टीचर। तो मैं इसलिए बहुत वेलकम करूंगा यहाँ पे और आप लोगों के सामने वो तशरीफ फरमा है और इन्होंने 26-27 इनकी जो है पब्लिकेशंस हैं और डजन्स ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल अटेंड की हैं। तो इनके एक्सपीरियंसेस को आज हम इंशाल्लाह इनसे सुनेंगे और पहले भी हम सुनते हैं। तो आज आप लोग इससे होंगे। तो दूसरे हमारे जो स्पीकर हैं कीनोट स्पीकर हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज, डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। तो वो हमारे पास मौजूद है। उनका सर उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर तशरीफ ले आए सर। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब ये डीन है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज लाहौर लीड यूनिवर्सिटी के और मोर देन 40 ईयर इन्होंने नेशनली इंटरनेशनली परफॉर्म किया है और ये बहुत अच्छे हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक हैं। उसके अलावा जो है ना ये डेडिकेटेड भी बहुत है अपनी जॉब से यहाँ तक मेरा मैं इनको जानता हूँ तो कभी इनको छुट्टी करते भी नहीं देखा। और उसके अलावा ये तकरीबन इनका 15 पब्लिकेशंस हैं। इनका हालांकि थोड़ा टफ है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसमें पब्लिकेशंस होना बहुत डिफरेंट बात है, लेकिन इनको 15
इम्पैक्ट फैक्टर्स में पब्लिकेशन है इनकी, बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड है इनके पास, और HEC का अवार्ड 2004 में उन्हें हासिल किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जी इनके पास। तो उसके अलावा ये बेस्ट टीचर अवार्ड इन्होंने हासिल किया। फिर उसके बाद ये मेंबर हैं मैथमेटिकल सोसाइटी, तो इनके लिए एक बिग हैंड्स है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा आज के जो हमारे कॉन्फ्रेंस की, चूंकि ये सेशन है और इसमें रिकमेंडेशंस कॉन्फ्रेंस जो आज हमें जो है एक वैरायटी ऑफ सेशंस फर्स्ट डे के अंदर हुई, जिसमें हमने प्लेनरी सेशन किए, पैनल डिस्कशंस हुई, 2 से 3 पैनल डिस्कशंस हुई, और उसके अलावा साथ साथ कॉन्फ्रेंस सेशन के भी 2 सेशंस कल तक हमारे चले हैं। तो आज जो हमारे 9 वेन्यूज थे उसके ऊपर तकरीबन कल जो हमने 44 के करीब जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जो हमारे पेपर्स हैं वो पढ़े गए, और डिफरेंट सेशन चेयर्स हैं जिन्होंने उसको सुना और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन दी। और आज एक सेशन था, और उस सेशन के लिए जो है ना वो कॉन्फ्रेंस सेशन जो है ना वो कंप्लीट हुआ है। 8 से 9 वैल्यूज थे जिसमें पढ़े गए हैं। और अब चूंकि हमने कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करना है, और इसकी रिकमेंडेशन के लिए मैं हमारे यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद मोहम्मद जावेद, लाहौर लीड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप तशरीफ लें, आप स्टेज पे तशरीफ लें, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. The conference veteran, the conference chair, keynote speakers, and delegates. Assalamu alaikum. I'm feeling honored to present recommendations of this 2 days international conference on integration of social sciences. Its main theme was navigating social challenges through integrated social sciences. Its sub-themes included empowering well-being, the mind-body connection, ethics, Islamic perspective and society, religion and secularism, politics, tourism and economic intersections, socio-economic perspective and rural dynamics, addressing climate change through social science perspectives, technology and society, justice and ethical considerations, sustainable development, energy, halal food and industry, innovative approaches to learning and engagement, media influence, shaping public perception and social norms, globalization, effects on local cultures and social structures. About 70 papers were presented in this conference. Scholars, researchers, and teachers presented their papers. Following recommendations emerged from this conference. Number 1, social challenges can only be addressed by research-based knowledge and skills. And this research must be authentic. Number 2, no single discipline can address social challenges, so there is a need of integrating not only social sciences, but also natural sciences, medical sciences, engineering sciences, etc., to understand the problem from different angles and perspectives. Number 3, social sciences focus on cultural specifics. So research in local and indigenous context is valuable. Research in other contexts is unable to resolve the problems of a community having different contexts. In the first international conference on integration of social sciences held in 2024, recommended to develop a degree program in social science at university level to enhance students' ability to understand and address social problems
satisfactorily. Lahore Leeds University establishes a department to realize this recommendation. Now, recommended integrated social science model for Pakistan. ये एक प्रपोज है, इसके लिए यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस वगैरह आई उनको सामने रखा गया और कुछ इकदाम हैं जो तजवीज़ किए जाते हैं कि अगर वो इकदाम दिए गए तो यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंसेस के लिए सक्सेसफुल एफर्ट हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये पॉलिसी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इसके लिए हमें पॉलिसी और गवर्नेंस जो है उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। उसमें पहली बात तो यह है कि नेशनल सोशल साइंस काउंसिल या इस तरह का कोई खुद मुख्तार इदारा जो है वो कायम होना चाहिए, वो कायम किया जाए और ये नेशनल लेवल पे होगा तो ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत और इसमें जो प्लानिंग विंग है उसका भी होगा। तो ये गाइड करेगी कि आइंदा हम सोशल साइंसेस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह सोशल साइंसेस को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे भी ये इस तरह के अदारे होने चाहिए, एक अदारा हो जो प्रोविंशियल सतह पे ये काम करे और यूनिवर्सिटीज के लिए एचईसी और जो प्रोविंशियल एचईसीज हैं वहां पे भी इसके टेस्ट करें। डेवलप अ नेशनल सोशल साइंस इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत है जो डेवलप किया जाए। अलाइन सोशल साइंसेस एजुकेशन विद नेशनल प्रायोरिटीज, ये हमारी नेशनल प्रायोरिटीज क्या है उनको सामने रखते हुए हम अपनी जो सोशल साइंस एजुकेशन है उसके साथ अलाइन करें। थर्ड सेकेंड है करिकुलम इनोवेशन। करिकुलम ये बहुत अहम एलिमेंट कि अगर आपका करिकुलम जो है वो इनोवेटिव नहीं होगा या नीड्स के मुताबिक नहीं होगा, आपकी नीड्स को पूरा नहीं करता तो वो करिकुलम काम नहीं करेगा। जब करिकुलम काम नहीं करेगा तो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। उसके लिए interdisciplinary curriculum, creation of curriculum that integrate disciplines such as sociology, anthropology, political science, psychology, economics, and history with the real world issues. हमारे जो हकीकी इश्यूज हैं उनको सामने रखते हुए इन इंटीग्रेट किया। मसलन क्लाइमेट चेंज, ये हमारे बहुत बड़ा इशू, क्लाइमेट की जो तब्दीलियां आ रही हैं उससे हमारी ज़राअत पे भी असर पड़ रहा है, उससे हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, उससे हमारी लिविंग पे भी असर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज, इसी तरह जो स्मोक है या लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है का खराब होना, ये भी अर्बनाइजेशन है, शहर बड़े बड़े बन रहे हैं, उनके अपने मसाइल, लोग देहात छोड़ के शहरों में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी जो लाइफ हैं वो अब डिजिटलाइज हो चुकी है, उससे हमारे सोने जागने की टाइम लगती है, हमारी एक्टिविटीज चेंज, इवन हमारे रिसर्च पैटर्न्स चेंज, तालीम पढ़ने और पढ़ाने वो उनके टूल्स में तब्दीलियां आ चुकी है। civic education and social justice, इसके लिए responsibility, ethics, inclusion, human rights and gender studies in textbooks and classroom. ये तो नेशनल लेवल पे होगा, फिर उसकी करिकुलम की एडेप्टेबिलिटी जो है वो प्रोविंशियल लेवल। आज वैसे भी 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस हैं खासकर एजुकेशन जो उसमें शामिल है ये प्रोविंशियल इशू बन चुका है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हर सूबा जो है वो अपना करिकुलम बनाएंगे उसको आजाद। तो फिर ये
जितने भी प्रोविंसेस हैं उनको इस चीज की इजाजत दी जाए तो अडेप्ट कर सके नेशनल करिकुलम को अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स के। यहाँ पे बहुत बात हुई नॉलेज जो है वो काम करता है जो कंटेक्चुअलाइज हो और लोकल, ताकि वो हमारी जरूरियात जिस खित्ते या जिस कम्युनिटी के जिस लोकेलिटी में तालीम दी जा रही है वो वहाँ की जरूरियात पर। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर हम ये कर भी लेंगे तो हमें टीचर्स की कैपेसिटी को बढ़ाना ताकि टीचर्स इस करिकुलम को आगे तो सही तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सके और ट्रांसफर कर सके। इसमें टीचर ट्रेनिंग एक सिस्टम बने और टीचर ट्रेनिंग प्लान को जदीद बनना 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक, ताकि वो टीचर जो है वो उसी के मुताबिक अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाए। और खासतौर पे ये जो इशूज है कि 21st सेंचुरी की जो सर्वाइविंग स्किल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं 20th सेंचुरी की सर्वाइविंग स्किल्स। तो अगर वो सर्वाइवल स्किल्स हम इनकलकेट नहीं करते, डेवलप नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता हम दुनिया से बहुत पीछे रहते हैं और मिसाइल में गिरते थे। इसमें नेशन वाइड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में emphasis on participatory learning, critical thinking, and inclusive pedagogy. Academic development programs institutional strength. Institutions जो है उनको स्टैंड किया, उनको वसाइल दिए, सोशल साइंस रिसर्च हब स्कैन किए, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट लिंकेज जो है वो बनाए, पब्लिक एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। 5वीं सतह पे पब्लिक को एंगेज किया और उसको अवेयर किया। जब तक पब्लिक एंगेज नहीं होगी ये तब्दीलियां नहीं आ सकती। कम्युनिटी डायलॉग एंड मीडिया कंपनी, उसके लिए क्या किया जा सकता है कि कम्युनिटी डायलॉग का आगाज, कम्युनिटी और मीडिया कंपनीज टीवी है या जदीद मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया, वहाँ बिजली कंपनी, यूथ एंगेजमेंट इनिशिएटिव, तो जैसे नेशनल लेवल एसेस हैं, डिबेट एंड इनोवेशन कंपटीशंस अराउंड सोशल इश्यूज, तो उनमें सोशल इश्यूज के अगेंस्ट ये अराउंड। फिर फंडिंग एंड इंसेंटिव, ये सबसे अहम है कि अगर फंडिंग नहीं होगी या इंसेंटिव नहीं होंगे तो कोई भी चीज पाया तक मेल तक नहीं होगी। तो उसमें सोशल साइंस रिसर्च फंड टाइम किया जाए ताकि वहां से उस फंड से फंडिंग की जा सके। स्कॉलरशिप एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स, और 7th है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एनुअल इंटीग्रेशन रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी। तो ये एक वर्केबल मॉडल है जिसको मजीद इस पे गौर वौस करके इसमें बेहतरियां लाके इस मॉडल को अपनाया जा सकता है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस। और इस कॉन्फ्रेंस की जो रिकमेंडेशन है वो यही मॉडल है, अगर इस मॉडल को अप्लाई किया जाए तो हम सोशल साइंसेस को सक्सेसफुली और मीनिंगफुली जो है वो कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इससे हमें अपनी दुनिया को और अपनी दुनिया के मसाइल को समझने और हल करने में मदद। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Professor Dr. Mohammed Javed साहब। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, जो कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट सेशंस हुए, डिफरेंट क्वेश्चन आई और हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट जो स्कॉलरशिप रखी हुई, उसके नतीजे में जो रिकमेंडेशन आई वो उन्होंने आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारे सामने ये चीजें आगे नोटिस में। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपके पैटर्न है कॉन्फ्रेंस के प्रोफेसर डॉक्टर नजीम अहमद भट्टी, वाइस चांसलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कि वो आए और अपने सर
Professor Dr. Akbar Saab, my worthy colleague, deans of various subjects, my colleague professors, scholars, students, and participants of the conference. In last 2 days, I really felt that this university is doing the task which universities are meant for. यूनिवर्सिटियों का जो मेन मकसद है एक्चुअली वो ये है जो हम कर रहे हैं। क्लासें पढ़ना पढ़ाना तो कॉलेज पे भी होता है और वो कॉलेज लेवल ही है। लास्ट ईयर हमने इनिशिएट किया स्टार्टिंग आवर पीएचडी प्रोग्राम्स और 3 सब्जेक्ट हमने पीएचडी स्टार्ट किए हैं और ये उसकी बहार है कि पीएचडी की वजह से हमारे पास इतने स्कॉलर भी लोग आए हैं जिन्होंने अपनी सोच से, अपनी फिक्र से और अपनी मेहनत से इस कदर हाई लेवल का मटीरियल जो यहाँ पे प्रोड्यूस किया है और प्रेजेंट किया है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारी 5 और पीएचडी जो है वो ऐड हो जाएंगी और जिसके रिजल्ट में नेक्स्ट ईयर हमारे पास 8 सब्जेक्ट पीएचडी होंगी। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू डॉक्टर फाकर साहब, the next year our quality of presentation will be even better than what we did this time. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लोगों ने जितनी दिलचस्पी लेके जितनी डेप्थ में जाके नॉलेज को खंगाला है और अपने पेपर प्रोड्यूस किए हैं और उनको यहाँ आके प्रेजेंट किया है, that's really remarkable. I have been to a conference at Punjab University and UMG last week. एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने मिलकर की और मैं दोनों में इसलिए हुआ। Trust me, the level of seriousness and quality of content that was discussed at Lahore University is much higher than those both of the universities. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि I'm at Lahore University, but it's reality because I have been to both those universities and अब लास्ट वीक की बात है और हमने इस वीक में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। एक हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी में हुई है जिसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की और वी इनवाइटेड स्पीकर्स फ्रॉम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर, वाटर शॉर्टेज के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म के पेपर प्रेजेंट किए। और फिर ये अभी मैं इस्लामिक स्टडीज का देख रहा था कि जितनी हमारे ये मौलवी हजरात जितनी मेहनत से इन्होंने काम किए हैं और जितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने उन इश्यूज को एड्रेस किया है जो इस वक्त वर्ल्ड में मुस्लिम को फेस करने पड़ रहे हैं और उनके सोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन दी है व्हिच वाज वेरी पावरफुल। मैं आपको भी सुन रहा था, वी डेफिनेटली नीड, हमारी ये जरूरत है कि इन चीजों को हम सोचें। आपने इस्लामिकोफोबिया की बात की है और इस्लामिकोफोबिया क्यों है, रीजन क्या है और क्या हम कर सकते हैं कि अपना इमेज जो है हमारा एक पॉजिटिव इमेज हो गया है। ये आपने सारा काम किया, उसके ऊपर आपने रिकमेंडेशन दी है, दैट्स वेरी यूजफुल वर्ड। और ये जो बैठे हैं हमारे लिटरेचर वाले, इंग्लिश उर्दू वाले, ये तो हमेशा ही तकलीफी काम करते रहते हैं और इनके यहाँ इस बार फिर साइकोलॉजी में बहुत खूबसूरत वर्क हुआ और साइकोलॉजी हमारी जो नफ्सियात को डील करती है उसके ऊपर वेरियस एंगल्स के ऊपर इन्होंने स्टडीज की और उसके पेपर यहाँ पे प्रेजेंट हुए। लॉ में बहुत कम रिसर्च वर्क होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, हमारे लॉ फैकल्टी के अंदर भी पेपर पढ़े गए, लिखे गए और इस 2 दिनों में 70 के करीब पेपर जो है वो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। 70 पेपर्स assume कर रहे हैं कि 70 में से half of the paper will be like not very good quality, but still half of them are like fine quality paper जो कि useful है, जिसके ऊपर काम किया जा सकता है और जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके we can develop this nation। जो सिफारिशात पेश की हैं डॉक्टर जावेद साहब ने, that was summary of the whole thing, these were so practical। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो इमेजिनेशन है, जो ऐसी नहीं जो एम्बिशन है, all is practical।
और मैं आई विल रिकमेंड कि ये हमें आप ये सिफारिश दें ताकि इनको हम यूनिवर्सिटीज की तरफ से सारी यूनिवर्सिटी को बुलाएं कि हमारी यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके एंड पे दिस एंड प्रोडक्ट एंड दीज आर रिकमेंडेशन व्हिच वी हैव मेड एंड दीज कैन बी इंप्लीमेंटेड एंड वी कैन मेक ए बेटर एंड ब्राइटर पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीबॉडी इस कॉन्फ्रेंस में बहुत दूर दूर से लोग तशरीफ लाए। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया, आप सबकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे वो करेक्टर्स जो यहाँ पे नहीं आए और यहाँ पे नहीं आए, कुछ ने वहां बैठ के काम किया है, कुछ ये फोटोग्राफर है इन्होंने भी आपकी खूबसूरत तस्वीरें बनाई होंगी, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं जो रजिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, कुछ हमारी सिक्योरिटी टीम है जो काम कर रही है, कुछ पार्किंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। दिस ऑल synergy and this was a collective effort which made this conference successful. I must admire everybody. I must say thank you to all of them, all teamwork, team players. These are the wonderful people. We have the best of the best team at Howard University, and this team will definitely produce excellent results today and time to come next year and year after and year after. ये सारी टीम जो है ये हमारी प्राइड है, इससे हम बेहतरीन रिजल्ट चला देंगे। Thank you once again. Thank you very much, Professor Dr. Nadeem Ahmed Bhatti, to encourage his team and the scholars and the speakers, panelists, and our staff. Thank you very much, sir. So, अब मैं request करूँगा, we have Professor Dr. Muhammad Nawaz, Dean, Faculty of Computer Sciences, to come here and say a few words, sir. Bismillahirrahmanirrahim. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट अभी साहब का, वाइस चांसलर साहब का, प्रोफेसर साहब का एक ऐसे शख्स को ये मौका दिया जिसका तो मैथमेटिक्स के साथ इस हवाले से मुझे कहानी याद आ रही है। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा तो पूरी सल्तनत में जो सबसे खूबसूरत बच्चे हैं वो लेकर। वजीर ने पूरी कोशिश की, तलाश किया कि बादशाह साहब साहब की खिदमत में पेश हुआ तो अपना बेटा सामने रख दिया। बादशाह ने कहा कि ये तुम्हारा अपना बेटा है। उसने कहा कि मुझे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंसेस, पिछले साल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेरे ज़हन में एक ही चीज थी, सोशल साइंसेस को इंटीग्रेट करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो है मैथमेटिक्स। इसे मेरी कहानी से रिलेट ना कीजिए, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। यहाँ जब ये सब जब बात कर रहे थे उन्होंने भी डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया। डिजिट यकीनन नंबर को कहते हैं, खास नंबर। तो सोशल साइंसेज में बल्कि हर मैदान में रिसर्च के लिए आपको पैरामीटर्स तलाश करना पड़ते हैं। उन पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन तलाश करना पड़ते हैं। उन रिलेशन से इक्वेशन बनती है और उन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास मसले का हल आता है। मसला साइकोलॉजी का हो, इवन इस्लामिक स्टडीज का हो, इंटरनेशनल रिलेशन का हो, उसका अगर आप पहले एक मैथमेटिकल मॉडल बना लें और उस मॉडल को आप सॉल्व करें तो आपके पास एक बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट आते हैं। मैं यही गुजारिश करूंगा फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंसेज मैथमेटिक्स की। थैंक यू।
Thank you very much, Professor Dr. Mohammad Nawaz, being Computer Sciences. उन्होंने बहुत जो है ना वो बात जो है ना वो इख्तिसार के साथ की, लेकिन बड़ी चली इसको जो है उन्होंने समझ दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मलिक साहब, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लाहौर यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाइस चांसलर साहब और इस कॉन्फ्रेंस के हुए रवा सबके रफीक जनाब रफाकत अली अकबर साहब, फैसल मजीद सगीरत भी हैं और इस कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी भी हैं, और वेरी मच ऑनरेबल डॉक्टर नवाज साहब। और ऑडियंस तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ब्रेन ऑफ दिस कंट्री के जो सारे माशाल्लाह पेपर राइटर हैं जिन्होंने रिसर्च की है। मैं चूंकि आया तो उस वक्त इस्लामियात का सेशन चल रहा था, तो आई वाज लकी टू हैव दिस टाइम टू लिसन ऑल दिस स्कॉलर्स और अच्छी चीजें मिली। उसमें जो एक चीज मेरे ज़हन में बार बार आ रही थी, क्योंकि मैं when I came to Lahore in 1974 to do my BCom, तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि यार तुम जिस शहर में जा रहे हो उसमें दोनों चीजें पीक पर हैं, रहमान भी पीक पर है और शैतान भी पीक पर है, तुम्हारी चॉइस है कि तुम किसको चुनोगे। अब फिर उस फादर, my father was illiterate but he had a double hat trick of horse riding in हमारा जश्न महारा होता है फोर्ट्रेस, तो he knew everything अरमान। तो उसने कहा कि मैं और तुम्हें कुछ नहीं कहता, ना मैं तुम्हें रोकूंगा कि तुम फिल्में ना देखना, ये ना करना, वो ना करना, मलकों का बेटा हो, कुछ ना कुछ तो करोगे। लेकिन उसने कहा कि लाहौर इज ए रिच ऑफ स्कॉलर्स, उनकी महफिलों में जाना करना, उनको सुनना जरूर करना, बाकी जो मर्जी तुम करते रहे। और आज मुझे वही चीजें आई नजर। बहुत खूबसूरत आर्टिकल थे हर लिहाज से। एक चीज की मुझे आ रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो मैं चीजें आपसे अभी सुना रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के सीखी। अल्लाह अलमाइटी सेज इन द होली कुरान के या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। असल में हमारी जो जितनी फेलवर है वो इस आयत के इर्द गिर्द घूमती। ये जो हुक्म है अल्लाह का, ये या अय्युहन्नास के लिए तो है ही, ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इट इज फॉर मी एंड फॉर यू। फिर जब एक आर्टिकल पढ़ा जा रहा था इस्लामिक मैशत के ऊपर, देखें तख्लीक करेंगे तो जो खालिक है वो हमें बहुत पसंद करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका मतलब हमने समझा नहीं है, और इसमें कौमों का जिक्र है। जिस कौम ने भी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, जिस कौम ने भी तख्लीक की, मैं तर्जुमा वैसे कर रहा हूँ, आप सारे समझते हैं इसको, मैं उसी कौम का सहारा बनता हूँ। फिर यह है कि लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। कितनी हम कोशिश करते हैं, कितना हम आगे जाते हैं और किस राह से हम चलते हैं। फुरकान हमीद जो है वो 30 पारा कमो बेश जैसे भी फिक्र आप लोगों ने किए हुए हैं। डॉक्टर नवाज साहब मैथ की बात कर रहे थे, 6666 आयतें करीमा है। आज तक मुझे किसी स्कॉलर ने यह नहीं बताया कि कितनी आयत करीमा का 800 साला इस्लामिक रूल खत्म होने के बाद हमने कितनी आयतों को पकड़ा और कितने कुरान के हिस्से को लिया और जिसके ऊपर हमारी रिसर्च। इतनी बड़ी किताब जिसके ऊपर हम ना तहकीक करते हैं ना रिसर्च करते हैं, और हम सारे छोटे छोटे डिसिप्लिन के लोग हैं, कोई मैथ का है, कोई केमिस्ट्री का है, और जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है उस तरफ हम नहीं गए। बहरहाल आप सारे स्कॉलर हैं, बेहतरीन उसके ऊपर काम है। बाकी 70 जैसे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, 70 पेपर का पढ़ना इट इज नॉट एन इजी टास्क, और इतने बड़े डिसिप्लिन और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करना, इसको जितना भी ट्रिब्यूट दिया जाए उतना ही कम है।
और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो आपका थीम है वो बहुत जबरदस्त है। आप जरा देखें तो वो है कि नेविगेटिंग सोशल, जो आपके इश्यूज हैं, सोशल चैलेंजेस, और फिर उनको कैसे दूर करना है। वो कहा गया है कि जब आप इंटीग्रेट नहीं करते ऑल दीज डिसिप्लिन्स, इंटीग्रेटिंग सोशल साइंसेस, इसका मतलब है कि सारे ज़हन और सारे इंटेलेक्चुअल और सारे डिसिप्लिन के लोग जब इकट्ठे होकर सोचेंगे तो सोसाइटी के सारे मसाइल तो हैं ही सी। एक हाथ तो इसमें यानी कि मसला ही नहीं है, तो हो नहीं सकता कि जब स्कॉलर ये सोचना शुरू कर दें। लेकिन स्कॉलर जरूर सोचे, जैसे जुबैर साहब ने रिकमेंडेशन दी है, फिर उन पे अमल वो करें कि जो हेल्थ ऑफ द फेयर पे बैठे हुए हैं। ये दोनों चीजें जब तक नहीं चलती, साइंस और फन, आर्ट्स और इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जब तक एक नहीं होते, हम वही बात है कि वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो ये सारी चीजें इसी की इर्द गिर्द घूमते हैं। बहुत चांस अच्छा मिला, खूबसूरत आज के साथों में से बेहतरीन साथ मिली, फिर आप लोगों को सुना, आपको देखा, आपके साथ बैठे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और मैं एक बात कहा करता हूँ स्कॉलर्स के लिए भी, तो स्टूडेंट्स के लिए भी, बार बार मुझे अच्छा लगता है वो कि इन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात इनकी, इन्हीं की महफिल संवारता हूँ, जराब मेरा है रात इनकी। जो इनको सुने उसे तरद्दुद, जो इनको देखे उसे तखय्युल, क्या कहूँ मैं बात इनकी, अमल हमारा निजात इनकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इहसान मलिक साहब। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जो चेयर हैं हमारे आज कॉन्फ्रेंस के, प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली अकबर साहब को, कि वो आए और कॉन्फ्रेंस को रखें। Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, Working Vice Chancellor Professor Dr. Dean Faculty of Business, Professor Dr. Ehsan Malik sir, Dean Faculty of Computer Sciences, Professor Dr. Nawaz Sahab, Sandoor Shoba, Jar, Asatideh Ikram, scholars, participants, presenters, और हमारा इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट्स स्टाफ। 2 दिन से सामईन भारी भरकम गुफ्तगू सुनते हैं, इसलिए कि कॉन्फ्रेंस वो मौका होता है जहां पर हमेशा ही संजीदा और इतना तवील वक्त संजीदा गुफ्तगू को सुनने के लिए इंतहाई संजीदा दिमाग चाहिए, और वो दिमाग मेरे सामने बैठे हैं। आप मुख्तलिफ मौके पर लोगों के लिए तालियां बजाते रहे, तो इस वक्त अपने लिए तालियां बजाइए जिन्होंने 2 दिन सुना, और ये तालियां अपने लिए तगड़ी करके बजाइए ताकि पता चले कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कमाल के लोग हैं, जिन्होंने इतने खुशू और खजू के साथ या कॉन्फ्रेंस के तमाम प्रेजेंटर्स को सुना। जैसा जनाब वाइस चांसलर साहब ने आपके साथ जिक्र किया कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी जब नए रास्ते तलाश कर नई राहों पर चलती है, तो फिर नई मंजिलें भी इसी का हिस्सा, नए संग मील भी हम ही अबूर करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे लाहौर लीड यूनिवर्सिटी के सफर में एक नया संग मील है, और हम उस संग मील पर आज पहुंचे हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है, और उस पड़ाव में और उस तारीख में आप सब हिस्सा हैं उस पड़ाव का। तो कभी अगर ये तारीख लिखी गई कि दूसरे कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स और पेपर प्रेजेंटर्स कौन थे, तो आपका नाम आएगा, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इसलिए आप भी बहुत पर ठहरे कि इस तारीख का हिस्सा बने। तो आपको तारीख बनने पर भी मुबारकबाद। आप अपने लिए फिर एक दफा तारीख मौजू पर
इतनी बात हुई है और इतनी खूबसूरती से हुई है कि मेरा दिल अब नहीं करता, इतने सारे उलमा के कुछ कहने के बाद मैं एक भी लफ्ज का, लेकिन भारत मुझे कंक्लूड करना है तो मैं कंक्लूजन पहले कर लूंगा और शुक्रिया फिर बाद में अदा करूंगा। तो कंक्लूजन के लिए मैं गालिब का सहारा ले रहा हूँ। गालिब ने कहा था कि देखना उसकी तकरीर की वजह कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में, तो हर एक ने मेरे दिल की बात कही, यही कंक्लूजन है। थैंक यू। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का निकाह जब होता है, कोई भी अमल वकूफ पजीर होता है, तो दो बातें उसमें होना लाजम है। जहां भी इंसानी तफाउल होता है वहां पर शिकवों का होना, वहां पर कमजोरियों का होना, वहां पर किसी खराबी का होना, उसकी निशानदेही होना, ये सबसे सहल काम भी होता है। और कई दफा हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो नजर नहीं आते। मगर इतनी खूबसूरत नज़म आराई के पीछे जो जिद्दोजहद होती है, जो मेहनत होती है, जो काविश होती है, वो अमूमी तौर पे आम नजरों से ओझल होती है। इसलिए वो जिनके मुनस्सर शऊर पर आती ही नहीं, इसलिए दूसरों को नजर भी नहीं आती। तो कमजोरी जाहिर होती है तो नजर जल्दी आती है। इसकी पहला ऐलान कब हुआ होगा इस कॉन्फ्रेंस का? अगर पार्टिसिपेंट्स में पूछूं तो यकीन जानिए ठीक 1 साल पहले हुआ, 365 दिन पहले। इसका मतलब यह है कि हमने इस ख्वाब को 365 दिन पहले देखा और फिर हमने इसकी तामीर के लिए कोशिश। आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मुझे सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना। यह हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारे मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं उनके सदूर पर मुश्तमिल, जो फैकल्टी का दिमाग है, जो फैकल्टी का दिल भी, इसलिए कि दिमाग से वो सोचते हैं और वो धड़कता है तो फिर फैकल्टी की धड़कती है। तो ये 2 in 1 है। ये सारे दोस्त अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो एक लम्हे के लिए आए ताकि आपके लिए स्पेशल तालियां मेरे साथ दाएं बाएं खड़े हों, ताकि मुझे अपना जो है ना इस दिल और दिमाग का आप देखिए। आइए जी लखियाना साहब। तो ये कह रहे हैं कि जिगर भी कहीं से दिल तक ना रहे, तो जिगर भी है। तो ये जो बाकी दोस्त शरीफ इन अहबाब के लिए बिलखसूस तालियां। इनके लिए हमने मुकद्दस मीटिंग्स की, छोटी छोटी बातों की प्लानिंग की। पिछली कमजोरियों को देखते हुए इस दफा और बेहतर करने के अहद का आज़म किया। ये सारा कुछ करते करते उसके बाद जो हमारी कमेटीज थी, ये तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी जो एक अम्ब्रेला कमेटी थी। उसके बाद सब कमेटी थी जो हमारे स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स और स्पोर्ट्स स्टाफ पर मुश्तमिल होती है। मुख्तलिफ कमेटीज जिनमें से रजिस्ट्रेशन कमेटी का काम सबसे ज्यादा होता है, वेन्यू कमेटी उससे मुश्किल होती है, वेलकम कमेटी जो फिर से, और सबसे मुश्किल काम होता है खाना खिलाने का। अरबी की जुबान में मतबख कहते हैं, नाज़ में मतबख हम इन्हें आम जुबान में अगर अरबी में मैं कहूँ तो जो इंचार्ज होते हैं। तो अगर ये कमेटीज के चेयरमैन और मेंबर्स मौजूद हैं तो आप भी तशरीफ लाएं एक दफा, ताकि जल्दी से आइए जल्दी। और इनके लिए तालियां जी एक दफा। ये सब किधर और तालियां प्रिया इसके बाद सही बात यह है, खूबसूरत महल देखें, किसी घर की खूबसूरत एजुकेशन हम तारीफ करते हैं, मगर वो ईंटें जो बुनियाद का हिस्सा बनती हैं कभी नजर ही नहीं आती।
जमीन में गर्क हो जाती है, मगर पूरी बिल्डिंग का बोझ उठाती है और फिर उसको खूबसूरती अता करती है। कोई उनको देखने वाला भी नहीं होता, उनका तज़किरा करने वाला भी नहीं। तो ये लोग बुनियादी तौर पे यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स स्टाफ जो स्वीपर से शुरू होते हैं, स्वीपर, माली, उनके सुपरवाइजर्स, उनका स्टेट ऑफिसर, और फिर आईटी के लोग, फिर कैमरा और कम्युनिकेशन के लोग, फिर सिक्योरिटी स्टाफ, गर्जे के किस किस का नाम लें कि जो यकीन जानिए हर एक से ज्यादा काम करते हैं। मैंने कभी इसमें झिझक नहीं महसूस की कि ये वो लोग हैं जो वाइस चांसलर से भी ज्यादा काम करते हैं, डीन से भी ज्यादा काम करते हैं। इसलिए कि वाइस चांसलर अपने काम करता है, उनकी नौयत भी बहुत होती है, डीन के कामों की नौयत भी, लेकिन ये बुनियादी काम कर रहे हैं। तो इसलिए जितने वर्कर भी हमारे मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आए और इनके लिए खसूसी तालियां, अगर इनके सुपरवाइजर मौजूद हैं तो वो भी अंदर आए। आइए जल्दी से आईटी के लोग आइए सर, बहुत वॉलंटियर से सब बात थैंक यू। एक ग्रोह वो होता है जो कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नौ आमोज होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, असातिज़ा की मदद कर रहे होते हैं, उनके असिस्टेंटशिप का रोल प्ले करते हैं। ये बुनियादी तौर पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, और वॉलंटियर्स वो हैं जो फ्यूचर के लीडर्स हैं। ये आज वॉलंटियर करते हैं काम करने को। मैं कभी कभी सोचता हूँ पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी में, तो यकीन जानिए हमने भी पहला काम वॉलंटियर के तौर पर किया। और वॉलंटियर वो होता है कि जो तमन्ना और किसी मुआवजे और उजरत के बगैर सीखने के नुक्ता नजर से और मदद करने के। आज जो सुबह का कीनोट एड्रेस था डॉक्टर शाहिद फारूक साहब का, जिन दोस्तों ने ध्यान से सुना है उनके लिए उसमें बहुत से लेसन थे। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर याद रह गए हो, वो कौन लोग होते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कहा। ये वॉलंटियर्स वो है, तो जितने वॉलंटियर्स हैं ये अपनी अपनी जगह पर ना सिर्फ खड़े हो बल्कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुंचे, जितने भी हैं, और आइए और इनके लिए खास तालियां। ये हमारा फ्यूचर है। और फरमान और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है पेपर प्रेजेंटर्स का, इसलिए कि जैसे सुबह की डेफिनेशन आपको अगर याद हो, मैंने वो डेफिनेशन सुनी थी डॉक्टर उस्मान सिद्दीकी साहब ने कनाडा से। यूनिवर्सिटीज का रोल उन्होंने बयान किया, 3 रोल उन्होंने बयान किया: क्रिएशन ऑफ नॉलेज, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज, डिसमिनेशन। ये कॉन्फ्रेंस इन तीनों कामों को शोल्डर करती है, ये काम है। और उसकी शोल्डरिंग में जो कंधे होते हैं वो बुनियादी तौर पर प्रेजेंटर्स के, इसलिए कि प्रेजेंटर्स पहले नॉलेज को क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ पर
डिस्कशंस होती हैं तो उसकी वैलिडेशन के प्रोसेस की तरफ चलती है और आखिर में फिर उसकी डिसमिनेशन होती है। तो आप लोगों के लिए जो यहाँ पर पेपर प्रेजेंटर्स बैठे हुए हैं इनके लिए खसूसी तालियां जी। ये दूर दराज के इलाकों से चल के आते हैं और मजे की बात है, पैसे भी देते हैं अपनी बात सुनाने के लिए। हालांकि सारी दुनिया जब बात सुनाती है तो पैसे लेती है, उलमा खुतबा देने जाए तो पैसे देते हैं, उस्ताद लेक्चर देने जाए तो पैसे देते हैं। एक रिसर्चर बाहर वो खूबसूरत शख्सियत है इस रूबे जमीन पर जिसकी बात कोई और सुनता नहीं, तो वो अपनी बात सुनाने के लिए क्या करते हैं, पैसे देते हैं। इनके लिए खास तारीफ। तो अगर भी और रह गया मेरे अलावा, इसलिए कि मैंने जितनी जिंदगी गुजारी है, मुझे अपनी जो याद वाली जिंदगी है वो 7वीं 8वीं से शुरू होती है, उससे पहले बहुत ही बचपना, मगर शौरी याद जिसे कहते हैं, तो उसमें हमेशा मेरी पूरी जिंदगी ख्वाबों से भरी हुई है। मैं ख्वाब देखता हूँ, फिर सुबह उसकी ताबीर भी निकलता हूँ, शाम तक ताबीर पढ़ता हूँ और अगली नींद से पहले एक और ख्वाब का याद। तो ये भी मेरा एक ख्वाब था, उसकी ताबीर मिली है और इंशाल्लाह और ख्वाब देखे। जो जावेद साहब ने रिकमेंडेशंस दी हैं पिछली दफा भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया और जनाब वाइस चांसलर साहब, इन्होंने तमाम रिकमेंडेशंस पर लाहौर लीड्स ने इनिशिएटिव लिया है और हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी में मेरे डीन्स और लार्जन डीन्स कमेटी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारी बड़ी डेलिब्रेशन से हमने उसको तजर्बाती तौर पर, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए इसको पहले, हमने उसको एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज बना दी। इंशाल्लाह अगले साल कॉन्फ्रेंस होने से पहले हम जो है उस कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन भी करेंगे और उसको रिसर्च सेंटर भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। आज जावेद साहब ने कहा कि एक इंटरडिसिप्लिनरी हब होनी चाहिए। ये उन्होंने एक रिकमेंडेशंस में से हब का लफ्ज इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप इंशाल्लाह हम अपने फैकल्टी मेंबर्स और अपने पीएचडी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल रिसर्च इंटरेस्ट ग्रुप्स इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करेंगे। और जो इस वक्त हमारे यहाँ 13 के करीब डिसिप्लिन्स और प्रोग्राम्स हैं, हम 13 इंटरेस्ट ग्रुप इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करेंगे और अल्लाह से इस बात का दुआ कर रहे हैं और अज़्म कर रहे हैं इस साल के अंत तक इंशाल्लाह 13 कम से कम छोटे प्रोजेक्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह 13 छोटे प्रोजेक्ट करेंगे और अगले साल वो जो इंटरडिसिप्लिनरी होंगे उन प्रोजेक्ट्स की फाइंडिंग हम इसी तरह की कॉन्फ्रेंस में और लीड्स में पेश करने की इंशाल्लाह पूरा इरादा है। और उसके लिए अगर वसाइल की जरूरत हुई और इंटरेस्ट ग्रुप जो हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह लाहौर लीड्स उनके लिए बुनियादी वसाइल भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए मुहैया करेंगे इंशाल्लाह मुझे कह रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आज 2 दिन की गुफ्तगू के बाद एक और चीज की जो बड़ी जरूरत महसूस है वो ये है कि ये इंटीग्रेशन तब तक मुमकिन नहीं है क्योंकि सोशल साइंसेस के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस के अंदर हमारी उर्दू लैंग्वेज, फिर पंजाबी और फिर कुछ मज़ामीन जैसे इस्लामिक स्टडीज है उसके लिए अरबी और इस्लामिक स्टडीज का इट्सल्फ कंटेंट, उसकी जो उर्दू जुबान की अपनी अफादियत है वो मुकम्मल अंग्रेजी मीडियम होने की वजह से वो कहीं अफादियत कम हो जाए। तो इंशाअल्लाह जनाब वाइस चांसलर आपकी इजाजत से ख्वाब हम देख रहे हैं कि हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस लाहौर लीड्स इंशाअल्लाह आज के बाद 2 कॉन्फ्रेंसेस करवाएगा साल में। एक कौमी कॉन्फ्रेंस प्योर उर्दू जुबान के अंदर जिसके अंदर हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तमाम मकालाजात और तमाम मज़ामीन और तमाम फाइंडिंग जो वो उर्दू जुबान में। तो इंशाअल्लाह हम एक कौमी कॉन्फ्रेंस का भी
आइंदा आने वाले वक्तों में हम प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको। और आखिरी बात, फिर इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूँ कि इंशाअल्लाह अजीज अगली आईकॉस 2026 इंशाअल्लाह अगले साल अप्रैल में होगी। इन्हीं दिनों में इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद हम उसका भी ऐलान करते हैं। अल्लाह हम सबका हामी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जी दो लोग भी बात कर रहे हैं तो माइक में है सर। थैंक यू सर। सर जिस तरह आपने माशाल्लाह जितने भी शोबाजात हैं जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनाफिद करने में अपनी तबदीली की कोशिशें की, आपने सबको वेलकम किया और सबकी हौसला अफजाई की, आपने सबकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। तो मैं हमारे शोबा इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत माहौल हमें दिया कि जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खूबसूरत जो गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। और तमाम दीगर जो लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मौजूद शुरका से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर के लिए एक तरह सब तालियां हो जाए। Thank you very much, sir. Our representative Islamic Studies Department. अब सर वो मरहला है कि जिसमें जो है वो हम सीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अगले दिन वो जाएंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा कॉन्फ्रेंस चेयर को डॉक्टर फाकत अली इकबाल साहब को कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे भाई साथी पीएचडी स्कॉलर जिया रहमान साहब ने अपनी हमारी तरफ से भी सबकी तरफ से पीएचडी के तमाम तलबा की तरफ से भी इस आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर शुक्रिया अदा किया है। और जो कुछ हमने सीखा है इंशाअल्लाह उसको हम बयान भी करेंगे और लिख कर भी देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक नया माहौल देखा। हमने अकबर साहब की जवानियाँ, उनकी जवानियाँ और उनकी सलाहियतें पंजाब यूनिवर्सिटी में देखी थी। लेकिन जो रात बर्मा होता है उसके चिकने चिकने बात होते हैं, वो जहाँ भी जाता है अपना असर दिखाता है। लाहौर लीड यूनिवर्सिटी का बहुत नाम सुना था, फिर हम आए, उसे देखा, परखा, चखा। लेकिन आज जब पता चला कि जहाँ कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं तो फिर वाकई ये इल्म का व्यवहार है, ये एक मादरी इल्मी है। और इस मादरी इल्मी के लिए मादर की गोद तो फिर हमेशा याद रहती है, उसकी शफकत हमेशा प्यार भरी रहती है। इस लिहाज से नदीम साहब भी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं और अकबर भाई भी यूनिवर्सिटी से आए हैं। अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे और हमें भी इनसे इस्तेमाल करने की तौफीक, जज्बा, हिम्मत और जरूरत अता फरमाए। बहुत बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। अस्सलाम। क्योंकि इस्लामी जमात हैं और मुझे सामीन को देख के लगता है कि जैसा तस्वीर इस्लामिक के डिपार्टमेंट के आ रही है, या इसी हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंसें हों, जो प्रोग्राम्स हों, उसके अंदर चूंकि ज्यादा लोग शरीक होने वाले, नमाज पढ़ने वाले हैं, कतल उस पर ऐलान नहीं होता। इसकी फिक्र करनी चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया कि जहाँ खाने का ऐलान है, जहाँ चाय का ऐलान है, ये प्रोग्राम इतने बजे स्टडी है, शुरू होना है, इतने बजे खत्म होना है, वहाँ अल्लाह को ही हम भूल जाते हैं। ये मेरी तजवीज़ है पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से। मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इसको महसूस किया है। आइंदा इसकी कोताही नहीं होनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। और अगर मस्जिद बना दी जाए, तो कल हमारे साथी ने इसका मुतालबा भी किया है कि सारे घर मौजूद हैं, सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर नहीं है तो अल्लाह का घर नहीं है।
तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा कॉन्फ्रेंस चेयर को कि वो आए और कॉन्फ्रेंस पैटर्न को समझिए पेश किया जाए। कॉन्फ्रेंस पैटर्न प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी, वाइस चांसलर लाहौर यूनिवर्सिटी। कनाडा देख रहे एक आपने मतलब ना वो सेक्रेटरी के लिए जो है वो है जो है वो वो सेक्रेटरी साहब सिंगल आउट हो गए। सेक्रेटरी साहब को खास कर एक्सक्लूसिव जितना काम उन्होंने किया, तो काम करते हुए क्योंकि हम इतने अंडर होते हैं, हमारे को छोटे बच्चे तो कई दफा पूरी मोहब्बत और शफकत के बावजूद हम बड़ों के रवैये के अंदर कोई दुर्दर्शी किया, वैसे वो उतनी मोहब्बत होती है। ये इतने अजीम आदमी थे कि उन्होंने दोषियों को मिठास समझा है और पूरी मेहनत के साथ काम किया है। तो एमपीएस जो तुर्शावी जो कैफियत को मिठास के अंदर बदलने की सलाहियत है, उसके लिए खास तारीफ अब मैं कॉन्फ्रेंस पैटर्न और कॉन्फ्रेंस के जो चेयर है उनसे दरख्वास्त है कि हमने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो जी सर, तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके हेड प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली अकबर खुद हैं, तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट मतलब है ना वो जी जी सर जी सर। तो चलिए जी, ये मेरा सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट तो है हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं सर, प्लीज। जी सर। डॉक्टर महमूद अहमद अजहर साहब मेंबर हैं इसकी कमेटी के, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ प्लीज अपना सर्टिफिकेट दीजिएगा। सईद अहमद भट्टू साहब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, ये मेंबर हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। डॉक्टर काशिफ जावेद साहब लॉ डिपार्टमेंट के हेड हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं। डॉक्टर सुमैरा मुनव्वर साहिबा, ये एचओडी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की। डॉक्टर हिलाल फातिमा, ये चेयरपर्सन है मैथ कम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा है। डॉक्टर जलीलिया जहांगीर, चेयरपर्सन है पॉलिटिक्स एंड आईआर। प्रोफेसर डॉक्टर अताउल्लाह हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर अमजद कुफैल साहब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। आमिर साहब, आमिर महमूद साहब, ये मेंबर है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। आगे नया मेंबर हूँ इसका अब मैं दरखास्त करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर एहसान मलिक साहब कि वो आए और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फरमाएं। जी आगे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हैं बैस्कान के, चलिए ठीक है। डॉक्टर जबीर इकबाल साहब हैं
डॉक्टर परवीन अख्तर इंग्लिश डिपार्टमेंट की, डॉक्टर मोहम्मद हफीज हैं कन्वीनर हैं ट्रेवल ट्रांसपोर्ट कमेटी के, डॉक्टर मिस्टर अब्दुल वाहिद हैं लेक्चरर, आगे डॉक्टर गुलाम मुर्तजा हैं लेक्चरर उर्दू डिपार्टमेंट के। उसके बाद मिस सबीन है लेक्चरर डिपार्टमेंट कोल आईआर की, बोर्डिंग रजिस्ट्री कमेटी की मेंबर। डॉक्टर खदीजा सत्तार हैं हमारी रजिस्ट्रेशन की भी करते हैं। उसके बाद मिस रुकैया हैं, मिस खदीजा अहमद हुसैन है, मिस फौजिया सुल्ताना है, प्रोफेसर सुल्तान महमूद न्याजी साहब हैं। उसके बाद महताब जलील अख्तर हैं, ये लेक्चरर हैं कोल आईआर की, फिर प्रेस एंड पब्लिकेशन कमेटी की हैं। जी जी। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर आयशा मकसूद हैं, मिस्टर मोहम्मद हनफिया हैं, मिस्टर इमरान सलीम हैं, मुस्तबशिरा कुदस हैं। उसके बाद मिस्टर जमील अहमद खोखर हैं लेक्चर लॉ डिपार्टमेंट के, और सिक्योरिटी के सूबेदार मोहम्मद फयाज हैं। हाफिज अवैदुर रहमान हैं इस्लामिक स्टडी के, सबा परवीन हैं सिक्योरिटी कमेटी के, मिस युमना अली हैं, मिस्टर शहजाद मकसूद हैं, और हमारी फूड एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी के मिस्टर फैजुल बारी हैं जो हमारे ट्रेनर हैं। अब दरख्वास्त करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज डीन फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, प्लीज आप आए सर्टिफिकेट। एमएस सादिया सईद हैं, मिस बख्तावर आरिफ हैं, मिस सबा एहसान हैं। उसके बाद वेन्यू कमेटी के डॉक्टर इरफान तौहीद हैं उर्दू डिपार्टमेंट के, डॉक्टर अरफान अकरम हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, मिस सबा मिसबा इकबाल हैं, सबा एहसान हैं, मिस्टर हाफिज गुलाम मुर्तजा हैं उर्दू डिपार्टमेंट। जो कमेटी के मेंबर्स मौजूद हैं वो काइंडली आप तशरीफ लें। और डॉक्टर अब्दुल्ला रहमान हैं, अब्दुल रहीम साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद एजाज हैं इस्लामिक स्टडी वाले, और डॉक्टर आईटी वाले आबिद महमूद साहब हैं, और फरमान असगर हैं वॉलंटियर ये हो गए। जी थैंक यू वेरी मच सर। जी जी अगर किसी का नाम हम भूल गए तो अच्छा हामिद भाई आईटी के हैं प्लीज आप।
Mr. Mohammad Faizan will इसानुर रहमान साहब इस्लामिक स्टडी से प्रेजेंटर हैं, ये आ गए। ज़ैनुरमान फारूकी साहब, ज़ैनुरमान फारूक, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकियाना साहब, चेयरपर्सन शोभा वो भी मौजूद हैं। अब्दुल वहीद सफी साहब, PhD स्कॉलर प्रेजेंटर। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद फैज साहब, MPhil स्कॉलर। हमाद सईद, PhD स्कॉलर। जैसा कहा गया कि बहुत दूर से ये PhD स्कॉलर खानेवाल से जाहिद नवाज, MA कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हाफिज खलील अहमद, PhD स्कॉलर। और कुवैत से हाफिज नसीरुद्दीन साहब। DPS के उस्ताद, DPS लाहौर में और मसाली उस्ताद हाफिज तलहा ताहिर। बुशरा ताज, PhD स्कॉलर। जवेरिया, MPhil स्कॉलर। जुनैरा MPhil स्कॉलर। ये हमारी बाकी स्टूडेंट्स की जो आगे आखिरी बात है निमरा। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है शोभा और इस्लामिया के PhD स्कॉलर, MPhil स्कॉलर। गुलाम फरीद फारूकी साहब ये बीकन हाउस में वहाँ पर ये बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद अरशद, MPhil स्कॉलर। मोहम्मद अनवर गोदल नहीं आए, अभी यहाँ नजर आए। मोहम्मद अनवर गोदल, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई मुदायरे की शक्ल बन जाए तो अभी तशरीफ ले आए। वाइस चांसलर से डॉक्टर अब्दुल अजीज शिकरी साहब भी तशरीफ लाए थे, उनके लोग माशाल्लाह। इलेक्ट्रिशियन का नाम मिस कर दिया था। इमरान इलेक्ट्रिशियन जी जाइए। इमरान इलेक्ट्रिशियन का नाम भूल गए थे। इमरान इलेक्ट्रिशियन साहब और उसके बाद एक्सपोर्ट स्टाफ उसके बाद यासीन एक इलेक्ट्रिशियन है जिन्होंने अपने सपोर्ट करते रहे सारे काम में। बाहर बैठे बुला लो। मैक्सिमम के अगर है तो वो आइडिया एक एक करके साउंड वाले हैं वो भी सही है ये आप भुख है भुख लुगी ले तेरा
खबर घर है बहुत मुझे तो खत्म करना नहीं है ना थैंक यू ये हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। हाँ हाँ अभी अभी ठहरना, इसके बाद 10-15 मिनट फिर। अस्सलाम वालेकुम। बस जनाब क्या हाल चाल है? ठीक है। यार ग्रुप फोटो के लिए बाहर चले जाएं, ग्रुप फोटो के लिए बाहर बाहर मेल पे।
ये लेडीज जितनी भी हैं ख़वातीन हज़रात ये स्टेज पे आ जाएं। तो यहाँ पे चेयर्स पे बैठ के तस्वीर बनानी है, पीसी साहब ने कहा है। जितनी भी ख़वातीन हैं ये स्टेज पे आ जाएं। जैन जितने भी है स्टेज से प्लीज उतर जाएं। पीछे साहब जैन जितने भी है नीचे उतर जाएं। वो एक और है 10 मिनट, वो दूसरा लिंक ऑन कर दो, इसको खत्म कर दो। वो तो 4 बजे खत्म हो गया, उसका टाइम बढ़ा दो, ये इसको लीव कर दो, उसको 5